Assalamu alaikum students. In previous lecture we have studied about the structure of the DNA. In this lecture we are going to study about the structure of RNA and the different types of RNAs. RNA का स्ट्रक्चर किस तरह से है और different types of RNAs हैं. So what is the RNA? RNA is called as the ribose nucleic acid. DNA में क्या था? Deoxyribonucleic acid. It is the ribose nucleic acid. RNA is again a long chain polymer of the nucleotide. RNA में किससे बना हुआ है? न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है. It is a long chain polymer of nucleotides. Okay? न्यूक्लियोटाइड्स क्या हो रहे हैं? यहाँ पे अरेंज हो रहे हैं और एक क्या बना रहे हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड बना रहे हैं. But here the nucleotide present inside the RNA is the single nucleotide. सिर्फ एक ही पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स यहाँ पे क्या रहती है? प्रेजेंट रहती है. That's why it is also called as a single stranded. In the DNA, the two strands of polynucleotides are present. और मैंने आप लोगों को बताया था कि दोनों स्ट्रैंड जो है नाइट्रोजन बेसिस के हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या रहते हैं? अटैच रहते हैं. But in the RNA, single polynucleotide is present. It is called as a single-stranded one. And most of the organisms are having the genetic material as a DNA. But in some viruses, remember, in some viruses and some bacteriophages, here the RNA is acting as a genetic material. सभी ऑर्गेनिजम्स में तकरीबन डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट रहता है. बट इन सम वायरसेस द आरएनए इज एक्टिंग एज अ जेनेटिक मटेरियल. हियर इन द यूकैरियोटिक सेल्स आरएनए इज प्लेइंग द वेरी इंपॉर्टेंट रोल, नॉट एज अ जेनेटिक मटेरियल बट इट इज हेल्प इन द प्रोटीन सिंथेसिस. इट इज द प्रोसेस इन विच वन जीन एक्सप्रेसेस इटसेल्फ. जब जीन क्या करते हैं? अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं. इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं प्रोटीन सिंथेसिस. और यही प्रोटीन सिंथेसिस में आरएनए जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. नेक्स्ट आरएनए, मैंने क्या बताया कि ये क्या है? इट इज द सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड. सो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स मीन्स मेनी न्यूक्लियोटाइड्स आर प्रेजेंट. व्हाट आर द न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ द आरएनए? We have discussed about the nucleotide, nucleic acid and nucleotides. Let us revise some points of nucleotides. Nucleotides किस तरह से रहते हैं आरएनए में? Nucleotides are basically made up of three components: sugar, nitrogen bases, and phosphate group. Sugar present over here is the again pentose sugar. किस टाइप की शुगर यहाँ पे प्रेजेंट है? पेंटोज शुगर. The pentose sugar, that is the C5H10O5. Okay, here the oxygen is present 5. DNA में वहां पे क्या था? ऑक्सीजन 4 प्रेजेंट था, but here the oxygen is 5. So write down the pentagon like this. Made a pentagon. Okay, first carbon, second carbon, third, fourth, and fifth carbon is out of ring. So this is the structure. First, second, third, fourth, and this is the fifth carbon. Again at the first carbon, HOH. Okay, here the same one, HOH, HOL. Here only H. Here H2 and OH. So OH is present here at the 4 different sides. That is the first carbon, second carbon, third carbon, and the fifth carbon. So at this side, that is the first carbon, second carbon, third, and the fifth carbon, which is out of the ring, the OH is present. So this is the pentose sugar. लेकिन डीएनए में क्या था? एक यहाँ पे सिर्फ H था, O ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं था, lack of oxygen. But here the OH is present and the chemical formula is C5H10O5. What about the nitrogen bases? Again the nitrogen bases is of two types. यहाँ पे नाइट्रोजन बेसिस अगेन है 2 टाइप के, सेम एज दैट ऑफ प्यूरीन्स एंड pyrimidines. We have seen the purines are of 2 types. That is the again adenine and guanine.
एडिनाइन एंड गोनाइन। एडिनाइन को हम लोग कैपिटल ए से एब्रीवेट करते हैं और गोनाइन को हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल जी से एब्रीवेट करेंगे। सो हियर प्यूरिन्स, यहाँ पे भी प्यूरिन्स किस तरह से है, डबल साइक्लिक लार्जर कंपाउंड, 9 रिंग कंपाउंड, एक पेंटागन और एक हेक्सागन यहाँ पे प्रेजेंट रहती है। एंड अगेन एडिनाइन एंड गोनाइन, these are the two purines are present, and here the pyrimidines are present. Out of the 3 pyrimidines, only 2 pyrimidines are present. In the DNA, the pyrimidines are cytosine and thymine. Here the pyrimidines are cytosine and uracil. So 2 pyrimidines are present, cytosine and uracil, abbreviated as capital C and U. So this is the guanine for capital G. एडिनाइन के लिए हम लोग कैपिटल A abbreviate करते हैं. So these are the nitrogen bases of the nucleotides of RNA. Again the phosphate group. The phosphate group is present in the form of phosphoric acid, that is the H3PO4. Again H3PO4 जहां पे phosphorus सेंटर में है, then OH group is attached, okay, in the form of phosphoric acid. तो ये क्या हो गया, this is the basic thing of the nucleotide. This is the pentose sugar. Next nitrogen bases AgCU. Instead of thymine, it is replaced by uracil, and here phosphate group is present. But how the nucleotides of RNA is formed? अब RNA मैंने क्या बताया कि सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, यहाँ पे बेस पेयरिंग्स प्रेजेंट नहीं रहती है। रिमेंबर, यहाँ पे नाइट्रोजन बेसिस की बेस पेयरिंग प्रेजेंट नहीं रहती है, बट इन सम केसेस द बेस पेयरिंग इज प्रेजेंट। सो लेट अस ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड ऑफ द आरएनए। अब पॉलीन्यूक्लियोटाइड हम लोग किस तरह से बनाते हैं? सो वी आर ड्रॉइंग द पॉलीन्यूक्लियोटाइड। फर्स्ट sugar is present. So here pentose sugar is there. This is the pentose sugar. Abbreviate this one is the S. Fifth carbon को इस तरह से हम लोग लेते हैं. So at the pentose sugar at the first carbon, what is present? Nitrogen base is present. So nitrogen base, any one of the nitrogen base, that is the adenine, guanine, cytosine and thymine. Adenine, guanine, cytosine and uracil is there. AgCU. Okay. Again, via the same linkage, which is called as the glycosidic linkage. Okay. Here at the fifth carbon, the phosphorus is attached via the sugar phosphate bond. Sugar phosphate bond. So this is the basic structure of the nucleotide of the RNA. That is nothing but the R nucleotides. That is the nucleotides of the RNA. Nucleotides of the RNA. DNA के nucleotides को हम लोगों ने क्या बताया था? Deoxy adenosine monophosphate. Okay. Here the nucleotides of RNAs are simple. That is the adenosine monophosphate, adenosine monophosphate, guanosine monophosphates. But here you should add R to them. That is the R adenosine monophosphate, R cytosine monophosphate, R. That is the, instead of D you have to add R. Guanosine monophosphate and R uracil monophosphate. Okay, uridine monophosphate, uridine, the name, cytidine, gonodine and adenine. These are the names of the nucleotides of the RNA. ये किसके नाम है? Nucleotides of RNA. आरएनए का स्ट्रक्चर हम लोग क्या करेंगे? अभी न्यूक्लियोटाइड्स ड्रॉ करेंगे. रिमेंबर द फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड, कंसिडर दिस इज द पेंटोज शुगर. एट द फर्स्ट कार्बन यहाँ पे क्या अटैच है? एडेनाइन इज अटैच. एट द फिफ्थ कार्बन अगेन द फॉस्फोरस इज अटैच्ड. ओके, द सेकेंड न्यूक्लियोटाइड अगेन
So here the cytosine is attached, adenine, sorry, guanine हम लोग लेंगे. Phosphorus is the fifth carbon. This is the pentose sugar. Then again cytosine, pentose sugar, and the last is the not thymine, it is the uracil. Make it as the U. फर्स्ट कार्बन पे, फिफ्थ कार्बन पे हम लोगों को फॉस्फोरस अटैच करना है. ओके, so this is the single nucleotide. This is the nucleotide which contain the adenine. This is the nucleotide which contain the guanine. This is the nucleotide which contain the cytosine and uracil. Okay, that is the riboadenosine monophosphate. That is the ribocytidine monophosphate, guanidine monophosphate, cytidine monophosphate, और RNA that is the ribo, that is the uridine monophosphate. इस तरह से न्यूक्लियोटाइड्स बन रहे हैं. But remember here the nucleotides are joined by the same joining. Third carbon of the above nucleotide attaches to the fifth carbon of the next nucleotide via the same bonding, which is called as a phosphodiester bond. सेम बॉन्डिंग हो रही है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से अटैच होते हैं. अगेन दिस कार्बन, दिस न्यूक्लियोटाइड इज हैविंग द 3' free end. Here this attaches to the preceding or next fifth carbon via the again same phosphodiester bonding. इस तरह से क्या हो जाता है, एक न्यूक्लियोटाइड बन जाता है. That is nothing but the single strand of RNA. इसी को हम लोग बोलते हैं सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड. So here अब पॉलीन्यूक्लियोटाइड की हम लोग क्या करते हैं, पोलैरिटी देते हैं. कौन सा एंड फ्री है, ये पोलैरिटी किस तरह से देंगे, 3' एंड यहाँ पे फ्री है, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड एज 3' एंड. दिस इज द 3' एंड. पोलैरिटी यहाँ से स्टार्ट हो 3' एंड एंड दिस इज द 5' एंड. So here there is a no base pairing. अगर यहाँ पे क्या होता है, कभी कभी आरएनएज में बेस पेयरिंग प्रेजेंट रहती है. समटाइम्स क्या हो जाता है, एक दूसरे के ऊपर लूप बनाते हैं. समटाइम्स दिस यूरासिल अटैचेस टू द ए ऑफ एनी अदर पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स. तो किस तरह से लूप्स बनाते हैं, लाइक कॉइलिंग स्ट्रक्चर. So that's why due to the non-base pairing or sometimes the unusual base pairings, the Chargaff rule, that is the number of purines, that is the A plus G, number of purines, adenine and guanine are the purines, is not equal to number of pyrimidine, that is the cytosine and uracil. Thymine नहीं है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, uracil प्रेजेंट है. So it is the pyrimidines. Their numbers are not equal. Means their ratio is also not equal. Means A plus G is not equal to C plus U. So there is no Chargaff rules. There is no Chargaff rules. This is the most important thing. Single strand present है. राइबोस शुगर कौन सी है, शुगर कौन सी है, पेंटोस शुगर है, राइबोस शुगर. ओके, सिंगल स्ट्रैंड इज प्रेजेंट, ओनली वन पॉलीन्यूक्लियोटाइड, no base pairing. Okay, no base pairing. Instead of thymine in the pyrimidine, uracil is present. So these are the some of the characteristics of the RNA. Next हम लोग देखेंगे about the types of RNA. RNA कितने टाइप्स के रहते हैं. So next is the type of RNA. Basically there are the two types of RNA. That RNAs are genetic RNA and non-genetic RNA. The RNA which is taking part in the formation, in the heredity and transmission. The RNA taking part in the heredity and transmission, जो कि हेरिडिटी और ट्रांसमिशन में यूज होते हैं, कैरेक्टर को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होने के लिए. That kind of RNA are called as a genetic RNA. And this genetic RNA is basically divided into the two types, that is the single stranded RNA and double stranded RNA. DS stands for double stranded RNA and SS stands for single stranded RNA. मैंने आप लोगों को बताया कि RNA किस तरह से रहते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड, एक ही पॉलीन्यूक्लियोटाइड वहां पे प्रेजेंट रहता है.
If only one polynucleotide is arranged in a linear manner, that kind of a polynucleotide is present inside the tobacco mosaic virus, जिसको हम लोग बोलते हैं TMV वायरस। यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड अरेंज इन अ लीनियर फॉर्म, दैट इज द टोबैको मोजाइक वायरस। बट हियर सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड ही प्रेजेंट है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए ही है, बट इन अ सर्कुलर फॉर्म, दैट इज द LTC virus, that is the leukotropic carnicidin virus. So these are the two types of single stranded RNA. Double stranded RNA are rarely present and it is present inside the reoviruses. The reoviruses are having a double stranded RNA, rarely present रहते हैं. But moving towards the non-genetic RNA. Non-genetic RNA जो कि हेरिडिटी और ट्रांसमिशन में पार्ट नहीं लेंगे, they don't help in a heredity. Okay, but what is their function? They perform the functions which helps in a protein synthesis. They help in function called as a protein synthesis. और प्रोटीन सिंथेसिस जो है दो फेज में होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। व्हाट इज द प्रोटीन सिंथेसिस? जब कभी कोई जीन जो हमारे डीएनए के ऊपर प्रेजेंट रहता है, ये अपने आप को जब एक्सप्रेस करता है तो किस टाइप से एक्सप्रेस करेगा? इन अ फॉर्म ऑफ अ प्रोटीन। जीन एक्सप्रेस हो रहा है मतलब हमारी बॉडी में कुछ प्रोटीन्स फॉर्म हो रहे हैं, तो जीन से प्रोटीन बनने के प्रोसेस में ये तीनों आरएनए, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन जेनेटिक आरएनए, ये हेल्प करते हैं। These are the rRNA, tRNA and mRNA. R stands for the ribosomal RNA and it is the major RNA, that is the 80% RNA. T stands for the transferable RNA, and M stands for the messenger RNA. rRNA का contribution 80% है, tRNA contribution है 10 to 15% of total RNA, and about 2 to 5% of the total RNA, mRNA is present. So let us discuss about the rRNA, tRNA and mRNA in detail, because later we are going to study about the protein synthesis. So starting from the first RNA, that is the mRNA, जिसको हम लोग बोलते हैं messenger RNA. So in this lecture, we are going to study about the types of RNA. The first one is the mRNA. Second is the rRNA. What is the mRNA? M stands for the messenger one. M stands for messenger. It carries the message from DNA to the cytoplasm. DNA जो कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहता है, वहां से मैसेज कैरी करता है साइटोप्लाज्म तक, राइबोसोम्स तक ये मैसेज क्या करता है? कैरी करता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ मैसेंजर आरएनए। इट इज आल्सो कॉल्ड एज अ टेम्पलेट आरएनए। टेम्पलेट आरएनए क्यों बोलते हैं इसको हम लोग? बिकॉज इट इज द एग्जैक्टली द कॉपी ऑफ द डीएनए, जहां पे जीन्स प्रेजेंट रहते हैं डीएनए पर। एक स्ट्रैंड रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं कोडिंग स्ट्रैंड्स, यहाँ पे जीन्स प्रेजेंट रहते हैं और यही जीन से क्या होता है? आरएनए बनता है। क्या है आरएनए? क्या है? इट इज अ टेम्पलेट ऑफ मैसेज ऑफ डीएनए। इट कैरीज द मैसेज ऑफ डीएनए। डीएनए से आरएनए बनने वाला है, तो डीएनए का क्या है? ये थोड़ा सा कॉपी है, टेम्पलेट है। दैट्स व्हाट इज कॉल्ड एज अ टेम्पलेट आरएनए एंड इज आल्सो कॉल्ड एज अ इंफॉर्मेशनल आरएनए, क्योंकि जीन डीएनए में क्या रहती है? इंफॉर्मेशन प्रेजेंट रहती है। वॉट एवर मे बी द इंफॉर्मेशन प्रेजेंट इनसाइड द डीएनए इज कॉल्ड एज अ कोडोजेंस। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कोडोजेंस। यही इंफॉर्मेशन जो है कौन कैरी करता है अपनी लैंग्वेज में? आरएनए। दैट्स व्हाट इज कॉल्ड एज अ इंफॉर्मेशनल आरएनए। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? इंफॉर्मेशनल आरएनए। डीएनए के पास जो भी कोडोजेंस हैं, ये कोडोजेंस ट्रांसलेट करता है, ट्रांसक्रिप्ट करता है, सॉरी, आरआरएनए, एमआरएनए। दैट्स व्हाट इज कॉल्ड एज अ मैसेंजर आरएनए। ये मैसेज कैरी करता है, डीएनए का मैसेज कैरी करता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, और ये कहां से? न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म की तरफ लेकर जाता है। दैट्स व्हाट इज कॉल्ड एज अ मैसेंजर आरएनए। नेक्स्ट, द मैसेंजर आरएनए इज अबाउट 3 to 5% ऑफ टोटल आरएनए। जितने भी टोटल आरएनए प्रेजेंट है
नॉन जेनेटिक mRNA, RNA और tRNA। इनमें से सबसे कम परसेंटेज रहता है अबाउट द मैसेंजर RNA, इट इज अबाउट 3 to 5%, and its weight is about the 5 lakh daltons. This is the 5 lakh. Weight is about the 5 lakh daltons, and it carries the information from nucleus to the cytoplasm. Nucleus से cytoplasm में, okay? DNA कहाँ रहता है? Consider this is the cell, this is the nucleus. यहाँ पे क्या है आपका DNA प्रेजेंट है। ये DNA से साइटोप्लाज्म में जो इंफॉर्मेशन कैरी होती है वो mRNA के थ्रू कैरी होती है। और mRNA कहाँ पे सिंथेसाइज होता है? इट इज सिंथेसाइजिंग इनसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में सिंथेसाइज हो रहा है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम कॉल्ड एज RNA पॉलीमरेज एंजाइम। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? RNA पॉलीमरेज एंजाइम। पॉलीमरेज जो कि पॉलीमराइजेशन में हेल्प करता है। किसके पॉलीमराइजेशन में? आरएनए के। तो आरएनए पॉलीमरेज जो कि आरएनए फॉर्मेशन में हेल्प करता है। कौन सा आरएनए फॉर्मेशन? एमआरएनए फॉर्मेशन। कहाँ पे होता है? इनसाइड द न्यूक्लियस। किसकी हेल्प से होता है? डीएनए की हेल्प से होता है। तो डीएनए का एक स्ट्रैंड जिसको हम लोग बोलते हैं एंटी सेंस स्ट्रैंड, एक स्ट्रैंड जिसको हम लोग बोलेंगे सेंस स्ट्रैंड और दूसरा स्ट्रैंड है एंटी सेंस स्ट्रैंड। और यही एंटी सेंस स्ट्रैंड के जो कोड्स हैं कौन कॉपी करता है? आरएनए कॉपी करता है। और क्या बनाता है? एमआरएनए बनाते हैं। एमआरएनए इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द डीएनए। कंसिडर हियर इन दिस वन डीएनए इज प्रेजेंट, फ्रॉम दिस एमआरएनए इज फॉर्म, सो इट कैरीज द मैसेज एंड तो डीएनए से एमआरएनए बनता है। कौन से स्ट्रैंड से? डीएनए के एंटी सेंस स्ट्रैंड से। विद द हेल्प ऑफ दिस आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की हेल्प से बनता है। नेक्स्ट प्रोसेस में हम लोग देखेंगे इन डिटेल अबाउट इट। नेक्स्ट अबाउट द कोडोजन, अबाउट द कोडॉन्स। व्हाट आर द कोडॉन्स? अब कोडॉन्स क्या रहते हैं? पहले हम लोग देखेंगे व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एमआरएनए। एमआरएनए इज लीनियर स्ट्रक्चर, लीनियर मॉलिक्यूल है। इसमें बेस पेयरिंग प्रेजेंट नहीं रहती है एंड वी आर रीडिंग द एमआरएनए फ्रॉम 5' टू 3' डायरेक्शन। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है 5' टू 3' डायरेक्शंस। So here on the mRNA, the nucleotides are present. The nucleotides are present. These nucleotides, okay, are present, which is copied from the DNA. DNA से क्या करते हैं? कॉपी करते हैं और एक लीनियर एमआरएनए बनता है। यहाँ पे बेस पेयरिंग प्रेजेंट रही है और रीडिंग किस तरह से करते हैं हम लोग? 5' से 3', इस डायरेक्शन में हम लोग क्या करते हैं? रीडिंग करते हैं एमआरएनए की। सो द न्यूक्लियोटाइड्स आर प्रेजेंट, दे आर नॉट पेयर विथ एनी अदर नाइट्रोजन बेसिस, दे आर अ सिंगल न्यूक्लियोटाइड एंड सेट ऑफ दीज 3 nucleotides are called as the codons, and each codon code for the particular amino acid. What is codon? Set of 3 nucleotides, consecutive nucleotides present on mRNA. इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? कोडॉन्स। सेट ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स क्या है? देखिए यहाँ पे AUGCA जो मैंने लिखा है न्यूक्लियोटाइड्स है। सेट ऑफ 3, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, तो ये 3 के सेट को हम लोग बोलेंगे कोडॉन्स। नेक्स्ट 3 अगेन 1 कोडॉन, नेक्स्ट 3 अगेन 1 कोडॉन। कॉन्सिक्यूटिवली क्या रहते हैं? कोडॉन्स प्रेजेंट रहते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे व्हाट इज कोडॉन्स एंड व्हाट इज द जेनेटिक कोड। तो ये कोडॉन्स रहते हैं 3 के सेट में प्रेजेंट रहते हैं। सो फर्स्ट 3 कोडॉन्स विच आर प्रेजेंट एट द 5' एंड इज कॉल्ड एज द इनिशिएशन कोडॉन। इसी को हम लोग बोलते हैं 5' एंड पे जो फर्स्ट 3 कोडॉन्स रहते हैं that is called as the initiation codons, and it is also called as a start codon. This is called as a start codon, and in most of the cases the start codon is AUG. 3 न्यूक्लियोटाइड के सेट को हम लोग बोलेंगे कोडॉन। 3 न्यूक्लियोटाइड कौन से हैं? A, फर्स्ट इज A, सेकेंड इज U, थर्ड इज G। तो ये 3 न्यूक्लियोटाइड्स हो गए। तो ये हमेशा फर्स्ट पोजीशन पे रहते हैं, दैट इज द AUG, और ये कोड करते हैं अमाइनो एसिड मिथियोनिन को। ओके,
So set of 3 nucleotides present on mRNA codes for, codes for particular amino acid. particular amino acid. So, ये हो गई कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ कोडॉन। 3 का सेट है जो कि पर्टिकुलर एक अमाइनो एसिड के लिए कोड करते हैं। सो द फर्स्ट 3 कोडॉन्स, so first codon, that is the set of 3 nucleotides present at the 5 prime end, is called as the initiation codon, or it is also called as the start codon. Next जो codon 3 prime end पे present रहते हैं, the last 3 nucleotides form the one codon which is called as a termination codon. इसी को हम लोग बोलते हैं stop codons, or it is also called as a termination codon. This is also called as a nonsense codon. इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? These are also called as a nonsense codon. Nonsense, they do not code for any amino acid. कोई भी अमाइनो एसिड के लिए कोड नहीं करते हैं, ओके? लेकिन इनिशिएशन कोडॉन जो कि AUG है। नेक्स्ट इनिशिएशन कोडॉन और क्या है? GUG भी यहाँ पे प्रेजेंट है इन सम केसेस। सो हियर इनिशिएशन कोडॉन, AUG और GUG is present, and stop कोडॉन जिसको हम लोग बोलेंगे टर्मिनेशन कोडॉन और नॉनसेंस कोडॉन। ये नॉनसेंस कोडॉन जो है 3 रहते हैं, तीनों में से कोई एक यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, एंड दिस नॉनसेंस कोडॉन इज अबाउट UAA, UGA एंड UAG। तो इस तरह से आप लोगों को एक mRNA का सीक्वेंस देते हैं इन नीड एग्जामिनेशन, तो वहां पे आप लोगों को पहचानना है कि सीक्वेंस ये तीनों प्रेजेंट है या नहीं। अगर ये तीनों सीक्वेंस प्रेजेंट है तो वहां पे जो है पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस यानी प्रोटीन सिंथेसिस स्टॉप हो जाएगी। रिमेंबर दीज 3 UAA, UGA एंड UAG, दीज आर कॉल्ड एज द स्टॉप कोडॉन, नॉनसेंस कोडॉन और टर्मिनेशन कोडॉन। सो दिस इज द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द मैसेंजर RNA। एंड मैसेंजर RNA और mRNA जो क्या है 3 to 5% है, और ये कहां पे सिंथेसाइज होते हैं? न्यूक्लियस में सिंथेसाइज होते हैं। एंड बेसिकली these are carrying the set of 3 nucleotides, and these set of 3 nucleotides are called as a codons. These codons are also called as a genetic code. This is also called as a mRNA language, और इसको हम लोग क्रिप्टोग्राम्स भी कहते हैं। क्रिप्टोग्राम्स, mRNA language, genetic code, these are nothing but codons. Next, 2 types of mRNAs are present. Types कितने हैं? 2 basically, monocystonic and polycystonic. In the monocystonic kind of mRNA, only one cystone is present, and that mRNA code for only formation of one protein. इसके अंदर इस तरह के कोड्स रहेंगे जो सिर्फ एक ही प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे, मोनोसिस्टोन। Polycystone, many cystones are there, and each cystone code for one protein. So here many cystones are there, so many proteins are formed from these kinds of mRNA. So they carry the messages of lots of formation of proteins. That's why they are called as a polycystonic, monocystonic and polycystonic. Next RNA is the rRNA. rRNA is also called as a ribosomal RNA. इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? राइबोसोमल RNA, and it contributes about the 80% of total RNA. It is also called as the insoluble or longest RNA. सबसे बड़ा RNA रहता है longest RNA, insoluble RNA, and it is the most stable RNA. Here in this RNA, the loop or base pairing is formed. बेस पेयरिंग होती है, कभी कभी क्या हो जाता है? एडिनाइन यूरासिल के साथ बाइंड हो जाता है, गोनिन साइटोसाइन के साथ बाइंड हो जाता है। एडिनाइन यूरासिल के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से बाइंड हो जाएगा, गोनिन साइटोसाइन के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ बाइंड हो जाएगा। तो दिस बेस पेयरिंग बेसिकली ऑब्जर्व इनसाइड द लूप। इस तरह से क्या बनते हैं? यहाँ पे लूप फॉर्मेशन होता है। दिस इज द लूप स्ट्रक्चर। लूप में क्या रहती है? बेस पेयरिंग्स रहती है, नाइट्रोजन बेसिस एक दूसरे से अटैच रहते हैं। 80% सबसे ज्यादा जो है क्या है? rRNA प्रेजेंट है, इनसेल्यूबल है लेकिन सबसे ज्यादा स्टेबल RNA है।
longest RNA is also the longest RNA. And ये कहाँ पे प्रेजेंट रहता है? As the name suggests, ribosomes. राइबोसोम इट इज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. 11th स्टैंडर्ड में हम लोगों ने सेल ऑर्गेनिल्स में देखा है. इट इज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. वहां पे क्या रहता है? लार्जर सब यूनिट एंड स्मॉलर सब यूनिट इज देयर. इन बिटवीन द लार्जर एंड स्मॉलर सब यूनिट आरआरएनए इज प्रेजेंट. ओके, आरएनए कहाँ पे सिंथेसाइज होता है? आरआरएनए इज सिंथेसाइजिंग इनसाइड द न्यूक्लियस बाय द जेनेटिक डीएनए. जेनेटिक और न्यूक्लियर डीएनए क्या करते हैं? आरएनए सिंथेसाइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ वन एंजाइम विच इज कॉल्ड एज आरएनए पॉलीमरेज 1. आरएनए पॉलीमरेज जो है 3 टाइप के रहते हैं. आरएनए पॉलीमरेज 1, 2 एंड 3. वन हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ आरएनए. और जैसे ये फॉर्मेशन हो जाता है साइटोप्लाज्म में चला जाएगा एंड इन द साइटोप्लाज्म इट परमानेंटली बाइंड्स टू द राइबोसोम where there is larger and smaller subunit. हम लोगों ने प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के राइबोसोम देखे थे 70S एंड 80S टाइप की. यहाँ पे क्या हो जाते हैं? राइबोसोम का लार्जर और स्मॉलर सबयूनिट बाइंडिंग में आरएनए क्या करते हैं? हेल्प करते हैं. एंड द नेक्स्ट फंक्शन ऑफ द आरएनए, इट हेल्प्स इन अ बाइंडिंग ऑफ एमआरएनए ऑन द क्लेफ्ट बिटवीन द लार्जर एंड स्मॉलर सबयूनिट. लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट के बीच में एमआरएनए बाइंड हो जाता है ड्यूरिंग द प्रोटीन सिंथेसिस. और एमआरएनए की रीडिंग जो होती है यही लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट करते हैं. फॉर द बाइंडिंग ऑफ एमआरएनए वी नीड आरआरएनए दैट इज द राइबोसोमल आरएनए. एंड द नेक्स्ट किससे सिंथेसाइज होता है? ये आरआरएनए पॉलीमरेज 1 से. नेक्स्ट इट एंटर्स एट साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म में एंटर करता है. परमानेंटली क्या है? किससे अटैच हो जाता है? राइबोसोम से अटैच हो जाता है. सो दिस इज अबाउट द आरआरएनए. और इसकी मॉलिक्यूलर वेट कितना रहता है? 40,000 से 1 लाख डाल्टन्स. एमआरएनए का मॉलिक्यूलर वेट क्या है? काफी ज्यादा है, दैट इज द 5 लाख डाल्टन्स. बट 80% सबसे ज्यादा जो आरएनए प्रेजेंट रहेंगे लॉन्गेस्ट आरएनए दैट इज द राइबोसोमल आरएनए. नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अबाउट द टीआरएनए, जिसको हम लोग बोलेंगे ट्रांसफरेबल आरएनए और सोल्यूबल आरएनए. सो द लास्ट आरएनए इज द टीआरएनए. टीआरएनए. टीआरएनए, T stands for the transfer RNA. It is also called as the soluble RNA, and it is also called as the adapter RNA. Adapter RNA. T stands for the transfer RNA. That is also called as a soluble or adapter RNA because it is easily soluble inside the cytoplasm. Cytoplasm में easily soluble हो जाता है and it easily dissolve inside the cytoplasm and cannot be separated by the ultracentrifugation. It is not separated by the ultracentrifugation. cytoplasm में easily dissolve mixed हो जाएगा और ultracentrifugation के थ्रू भी क्या हो जाएगा? ये separate नहीं हो पाएगा. Adapter RNA, tRNA, soluble RNA and contributes about the 10 to 20% and its molecular weight is about 23,000 to 30,000 daltons. Molecular weight सबसे कम है 23,000 से 30,000 and it is the smallest RNA. Remember it is the smallest RNA and it is about 73 to 93 nucleotides are present. सिर्फ 73 से 93 न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ पे क्या रहते हैं? प्रेजेंट रहते हैं. वेरी स्मॉलेस्ट आरएनए है, सोल्यूबल है, ट्रांसफरेबल है एंड इट इज हैविंग द 2 टाइप ऑफ मॉडल्स. दीज 2 मॉडल्स आर प्रपोज्ड बाय द 2 डिफरेंट साइंटिस्ट. वन मॉडल विच इज कॉल्ड एज ए हेयरपिन मॉडल, जो कि यूपिन और हेयरपिन की जैसी दिखती है. द सेकेंड मॉडल इज कॉल्ड एज ए क्लोवर लीफ मॉडल. द मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल इज द क्लोवर लीफ मॉडल. The first model, that is the hairpin model, is proposed by the Holle and Hoagland. These are the 2 scientists who proposed this model. The cloverleaf model was proposed by the 1967 by Watson and Crick. Has proposed this model, that is the cloverleaf model. तो हम लोग देखेंगे किस तरह से रहते हैं ये हेयरपिन मॉडल और क्लोवरलीफ मॉडल. सो फर्स्ट द हेयरपिन मॉडल. इट इज लिनियर डीएनए. क्या हो रहा है? ये अगेन कॉइल हो रहा है and it is forming a loop. This structure is called as a loop. In between the loop, the base pairings of nitrogen bases are seen. यहाँ पे क्या हो रहा है? बेस पेयरिंग समझ में आ रही है.
बेस पेयरिंग होती है कहाँ पे, इनसाइड द लूप। एंड वन एंड, the 5' end and 3' end, that is the 5' end and 3' end is observed. At the 5' end, the guanine is present. It always ends with the guanine. At the 3' end, here the CCA or ACC end is there. Means adenine cytosine is present at the 3' end. This help in the binding of the activated amino acid. Activated amino acids bind over this side, that is the 3' end, and at the opposite side, at the last loop, three nucleotides are present. These 3 nucleotides which are present on the tRNA, that are called as the anticodon. Set of 3 nucleotides, 1, 2, 3, which are present on the last loop of the tRNA, that is called as the anticodon. Why it is called as anticodon? Remember, it is having the complementary sequences as that of the codon. मैंने बताया था कि set of 3 nucleotides present on the mRNA, that is called as a codon. First codon हम लोगों ने देखा था mRNA 5' to 3', यहाँ पे था first codon AUG. इसी कॉम्प्लीमेंट्री कोडॉन, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या, ए अटैच हो जाएगा यू से, यू अटैच हो जाएगा किससे, ए से, एंड जी अटैच हो जाएगा सी से। तो ये यू ए सी जो है ए यू जी के कॉम्प्लीमेंट्री कोडॉन्स हैं। ये कॉम्प्लीमेंट्री कोडॉन्स को हम लोग बोलेंगे एंटीकोडॉन, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, इन द एंटीकोडॉन इन द ट्रांसफर और टीआरएनए। यहाँ पे क्या रहेंगे, यू ए सी। नॉट ऑलवेज, रिमेंबर, मैंने एग्जांपल दी है इनिशिएशन कोडॉन एमआरएनए का। तो फर्स्ट इनिशिएशन कोडॉन का कॉम्प्लीमेंट्री एंटीकोडॉन क्या रहेगा, UAC, जो कि टीआरएनए पे प्रेजेंट रहेगा, एंड दैट कैरीज द स्पेसिफिक अमाइनो एसिड। स्पेसिफिक अमाइनो एसिड, इसका काम क्या है, ये क्या करता है, ये अमाइनो एसिड को लेकर आता है। एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड को साइटोप्लाज्म से लेना है और इसको कहां पे ट्रांसफर करना है, राइबोसोम्स की तरफ। सो दिस इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रांसफरेबल और अडाप्टर टीआरएनए। सो ट्रांसफर ऑफ अमाइनो एसिड्स फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू द राइबोसोम इज कैरिड आउट बाय दिस काइंड ऑफ कोडॉन एंटीकोडॉन मैचिंग। जो कोडॉन्स एमआरएनए पे रहते हैं उसी के कॉम्प्लीमेंट्री कोडॉन्स टीआरएनए पे रहेंगे, दैट इज द सेट ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स। Next, the cloverleaf model. The cloverleaf model, it is proposed by the Watson and Crick, and it shows the 3 loops. Basically, 3 arms are there: acceptor arm, then looped arm, and variable arm. What is there in the acceptor arm? Why it is called as the arm? Here, in the arm, the straight base pairing is observed. In the loop, basically in this loop, the base pairings are not observed. बेस पेयरिंग यहाँ पे क्यों ऑब्जर्व नहीं होती है, बिकॉज हियर द सेम काइंड ऑफ टी सी हियर द सेम काइंड ऑफ नाइट्रोजन बेसिस आर प्रेजेंट विच पुल्स अवे ईच अदर। सेम काइंड ऑफ नाइट्रोजन बेसिस, अब जैसा आप लोगों ने देखा है कि सेम चार्जेस रिपेल्स ईच अदर, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। इस तरह से अलग सेम नाइट्रोजन बेसिस रहते हैं, एक दूसरे को पुल करते हैं और क्या बनाते हैं, एक लूप बनाते हैं। अगर कॉम्प्लीमेंट्री रहेंगे एक दूसरे से क्या बनाएंगे, दे आर फॉर्मिंग द आर्म। सो हियर इन दिस आर्म द बेस पेयरिंग वाज ऑब्जर्व, बट इन द लूप द बेस पेयरिंग इज नॉट ऑब्जर्व। 3 क्या है यहाँ पे, आर्म्स प्रेजेंट है, एक्सेप्टर आर्म। सो व्हाट इज देयर इन द एक्सेप्टर आर्म, अगेन 5' एंड 3' एंड। 5' एंड पे क्या रहेगा, गुआनिन रहेगा, 3' एंड पे एडेनाइन साइटोसाइन ACCEN। यहाँ पे क्या बाइंड हो जाएंगे, दैट इज द एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द एक्सेप्टर आर्म, इट एक्सेप्ट द अमाइनो एसिड। द सेकंड आर्म इज कॉल्ड एज अ लूप्ड आर्म। लूप्ड आर्म में 3 आर्म आते हैं, दैट इज द T5C आर्म, देन एंटीकोडॉन आर्म एंड DHU। सो हियर द T5C, यहाँ पे एक ही आरएनए इस तरह से है जहां पे थाइमिन प्रेजेंट रहता है इन अ T5C आर्म।
मैंने बताया कि थाइमिन और साइटोसाइन जो है क्या है, दीज आर नथिंग बट द पिरामिडिन से एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, एक लूप फॉर्म हो जाता है। सेकेंड इज द एंटीकोडॉन आर्म। Anticodons are present. Anticodons complementary to the codons present on the mRNA. अब AUG का complementary क्या था, A का complementary U, okay, then U का complementary A, then G का complementary क्या रहेगा, C। तो इस तरह से एंटीकोडॉन्स यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं। नेक्स्ट DHU, that is called as a dihydroxyuracil arm. Okay, here the uracil is actually hydrolylated, so it becomes the loop form, that is the DHU arm. Okay, and the next arm which is called as a variable arm. First arm हम लोगों ने देखा acceptor arm, second arm loop arm decisive, anticodon और DHU arm। तीन किस में आते हैं, loops में आते हैं, that is the anticodon arm, decisive arm and loop arm। And third is the variable arm. Variable arm is not having the base pairing. इसमें loops present रहते हैं। That's why it is also called as a loop one। ध्यान रखिए यहाँ पे loop में यहाँ पर क्या है, base pairing present नहीं है। loop क्यों बन रहे हैं, same kind of a nitrogen bases एक दूसरे को repel कर रहे हैं, loop बना रहे हैं। So the variable arm is there. The basic function of the variable arm is not known. But each tRNA having the one amino acid having the different variable arm. Variable arm का function अभी तक पता नहीं किया गया है, but it was supposed that this variable arm help in protecting the tRNA from the RNase enzyme. साइटोप्लाज्म में जब ये tRNA जिनके पास अमाइनो एसिड आ जाता है, तो साइटोप्लाज्म में कुछ एंजाइम्स रहते हैं जिन्हें हम कहते हैं RNase एंजाइम, जो कि आरएनए को किल करते हैं। एक्सेस आरएनए किल हो जाएंगे। ये आरएनए एंजाइम से प्रोटेक्शन के लिए टीआरएनए के पास क्या रहते हैं, वेरिएबल्स आर्म। इस तरह से समझा जाता है कि वेरिएबल आर्म हेल्प करते हैं आरएनए एंजाइम से बचाने के लिए। सो दिस इज द योर टीआरएनए, दैट इज द ट्रांसफर आरएनए और अडाप्टर सोल्यूबल आरएनए, दैट इज द स्मॉलेस्ट आरएनए। रिमेंबर, इट इज द स्मॉलेस्ट RNA। दो मॉडल देखे हम लोगों ने, हेयरपिन मॉडल एंड क्लोवरलीफ मॉडल।